Good evening, all of you. જય શ્રી કૃષ્ણ. અહીં ઉપસ્થિત વંદનીય રસીલા મેડમ, આદરણીય સુવર્ણા મેડમ, અંતિમા મેડમ તથા મારા શિક્ષક મિત્રો, સ્ટાફગણ તથા મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો દિવસ કેટલાક માટે ખુશીનો હશે, કેટલાક માટે દુઃખનો હશે. મારા ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓ હશે તો કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને એવું લાગશે કે આજે આપણે એક જેલરના હાથમાંથી છૂટ્યા છે. રોજ સવારે એકલું જ મોઢું જોવાનું અને જો થોડી પણ ભૂલ થાય એટલે ઘણું બધું સાંભળવાનું. સાચી વાત? 10th ક્લાસ. તો સૌથી પહેલાં તો હું આજનો દિવસ તમારો વિદાયનો છે, પરંતુ તમે એક્ઝામ पीछे से चेयर लाना इधर, वहाँ से चेयर. देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यार, देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा. तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा. यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम. कह दो ना you are my sonia.
सफर, क्या पता शायद वो पुराने दोस्त मिल जाए. So let us welcome the students of 9th standard to present a drama on school life. और स्कूलों को आखिरी दिन जब मेरा बच्चा स्कूल से ना जाने के लिए होता है, वो पहले दिन से आखिरी दिन तक का सफर कैसा होता है आइए देखते हैं. फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. और फिर कुछ सालों के बाद तालियां रुकनी नहीं चाहिए. Good morning, class. Your final exam will start from 6th March. Be prepared all of us. और फिर वो एग्जाम का डराना है.
पीछे से चेयर लाना इधर, वहाँ से चेयर। देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा ये देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा
इसके भी चाशनी वो मीठी मीठी चाशनी પરંતુ હમણાં થોડા ચિંતામાં જોવા મળે છે. હવે વાત કરીએ ભૂમિકા. એ ભણવામાં ખૂબ હોશિયાર છે. તે હંમેશા પોતાને આગળ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ ભણવામાં અને રમતગમતમાં ખૂબ આગળ છે અને હંમેશા ખુશ રહે છે. ધ્રુવ, તેઓ રાજાની સ્ટાઇલમાં ચાલતા હોય છે
તેમનો અવાજ એટલો મોટો છે કે જ્યારે બોલે ત્યારે ઘૂંઘાટ પ્રસરી જાય. તેઓ પોતાની જ મસ્તીમાં ફરતા હોય છે. હવે વાત કરીએ ચશ્મી. તેઓ કહે છે કે પીએચડી થયા છે. જેઓ કહેતા હોય છે કે આઈ એમ પીએચડી ફોર ડબ્બા યુનિવર્સિટી. જેઓ ભણવામાં ખૂબ આગળ છે, એ મસ્તીમાં પણ ખૂબ આગળ છે. તેઓ ખૂબ જ સારા વૈજ્ઞાનિક બનવા માંગે છે. તેમને છાશમાંથી દૂધ કેવી રીતે બને તેમની આવડત છે. હવે વાત કરીએ નતાશા. જેઓ ટેલેન્ટેડ ગર્લ છે, હંમેશા અભ્યાસમાં આગળ રહે છે અને સ્પર્ધામાં હંમેશા પ્રથમ નંબર આવે તેવા પ્રયત્ન કરે છે. જેઓ સરળ અને શાંત છે. વંશ તેમનો અવાજ ખૂબ જ પાતળો છે. તેમના અક્ષર નાના બાળકો જેવા છે. તેઓ હંમેશા ખુશ રહે છે. હવે વાત કરીએ રિયા પ્રજાપતિ. હંમેશા તેઓ ચૂપચાપ બેસી રહે છે. તેઓ ઓછી વાતો કરે છે. તેઓ શાંત છે અને તેઓ હંમેશા ખુશ રહે છે. રાધિકા તેઓ ખૂબ જ શાંત છે. તેમને એકલા રહેવાનું ખૂબ જ પસંદ છે. હવે વાત કરીએ રોહિત. તેઓ ખૂબ ઝડપીથી બોલે છે અને ભણવામાં ખૂબ આગળ વધવાના પ્રયત્ન કરે છે. જેને સલાહ આપીએ તો શાંતિથી ગ્રહણ કરે છે. જેઓ ખૂબ સારી ચા બનાવે છે. સાક્ષી તેઓ ખૂબ શાંત છે. કોઈ શિક્ષક સલાહ આપે તો તેને શાંતિથી ગ્રહણ કરે છે. હવે વાત કરીએ પૂજા. તેઓના અક્ષર મરોડદાર પણ મગજ થોડું નાનું છે. સ્વભાવમાં બોરી છે પણ ભણવામાં વધારે પડતા બોરા છે. સુરભી તેમને ખૂબ ભણવામાં રસ છે. તેઓ વર્ગખંડમાં સાથ બેસે છે. તેઓ શિક્ષકની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. હવે વાત કરીએ તનિષા. તેઓ ખૂબ લડાકુ અને ફેશનમાં આગળ છે. ભણવામાં ટેન્શનમાં વાંચવા બેસે છે અને મગજને ફ્રેશ કરવા ઇન્સ્ટાગ્રામનો ઉપયોગ કરે છે અને નવી રીલ્સ બનાવે છે. રિયા ડામોર તેઓ ખૂબ શાંત છે. તેઓ કામ પૂરતું બોલે છે અને હંમેશા ખુશ રહે છે અને આગળ વધવાના પ્રયત્નો કરે છે. થેન્ક યુ. मैं पैरामीटर बताना चाहूँगी सबसे पहले. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4n, रेक्टेंगल 2l plus b, ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सर्कल circumference of a circle 2 pi r square, area of a circle.
अपना वक्त बिताया होता है। स्कूल, जी हाँ, जहाँ पर हम पहली बार गए थे अपने घर वालों को छोड़ के, दोस्ती करना जहाँ पर सीखा था कुछ नया सा रिश्ता जोड़ के, जहाँ पर सभी रोते हुए आए थे और रोता है हमारा आखिरी दिन, क्योंकि ज़िंदगी भर याद आएंगे ये खट्टे मीठे स्कूल के दिन। जब सुबह देर से उठते तो घर के सामने वैन खड़ी होती और बार बार हॉर्न बजाते, फिर पापा हमें डांट देते। स्कूल के टीचर से हम नए नए नाम बनाते। हर रोज़ मॉर्निंग में टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर का एक लंबा सा गीत गाकर सुनाते, और टीचर जब भी पीछे मुड़ती तो हम छिपके से टिफिन खाते। दोस्तों और जूनियर्स का टिफिन उनसे पहले हम ही खत्म कर जाते। वो ब्लैक लिस्ट का टैग लगाकर हम बैक बेंचर कहलाते। पेन फाइट से लेके कितने ही गेम हम पीछे बैठकर खेला करते। वो पेंसिल से पेन में कन्वर्ट होने वाली फीलिंग्स, वो हाउस सिलेक्शन तो हमारी क्रिकेट इनिंग, वो कैंटीन के समोसे तो बंकिंग पॉइंट की बातें। हम सबका फिर साथ मिलके वो संडे की मुलाकातें, वो वॉशरूम में सबका साथ जाना और आधा लेक्चर वहीं बिताना, वो छोटी सी लड़ाइयों पर स्कूल के बाहर में ये कहकर एक दूसरे को हड़काना, वो बचपन का यार, स्कूल वाला प्यार, उससे मिलने के लिए रहना हर वक्त तैयार, वो लाइफ का पहला क्रश, हर वक्त बस उसे देखने का रश, कभी टीचर, कभी सीनियर तो कभी क्लास वाली भी बस, वो स्कूल के प्रोजेक्ट तो कंप्यूटर लैब की बातें, कोई एक पानी पीने को जाता तो उसको अपनी बॉटल भी पकड़ाते, वो स्टाफ रूम में जाने का डर, कुछ होते थे अच्छे वाले सर तो कुछ खड़ूस टीचर, दोस्तों के साथ हर दिन स्कूल आना जाना, कभी कभी घर देर से पहुंचना, फिर माँ की डांट खाना, एग्ज़ाम हॉल में दोस्तों के सहारे जाना, कभी आगे वाले से पूछना तो कभी पीछे वाले को दिखाना, वो अपनी कोड लैंग्वेज बना के एक दूसरे को इशारों में आंसर बताना, जब आगे वाला धोखा देता और पीछे वाला मेरे भरोसे होता। जब एनुअल फंक्शन आता पूरा स्कूल जैसे जगमगा सा जाता, हम सब भी सज धज कर जाते और कितना मजाक उड़ाते। वो उससे बात करने के लिए दोस्त को चढ़ाना, तू जा बात कर उससे मैं हूँ यहाँ, ये कहकर उसकी हिम्मत बढ़ाना और दूसरे ही पल वहाँ से भाग जाना। बर्थडे पर सबको एक एक और अपने बेस्ट फ्रेंड को 2 चॉकलेट्स देना, वो कागज़ के जहाज, वो लाइब्रेरी की मुलाकात और कभी ग्रुप फोटो में दोस्त को गुड़गुड़ा के हंसाते, वो 15 अगस्त के लड्डू तो लेक्चर के बीच में हुई बातें, वो होली को होली से पहले खेल कर आना तो दोस्तों के वादे। और होमवर्क देने वाले प्यारे टीचर्स एंड ऑल माय फेलो जूनियर फ्रेंड्स, I would like to make a moment to thank you all for giving me opportunity to present my experience and thoughts. तो स्पीच देने से पहले एक डिस्क्लेमर तो बनता है क्योंकि क्लास बहुत खतरनाक है। इस कार्यक्रम में उपस्थित 9th क्लास की प्यारी बहनें और उनके प्यारे भाइयों, टीचर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, इस स्पीच में बोले जाने वाले वाक्य का मेरे मित्रगण, टीचर्स और जूनियर्स की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया हमारी एक्सपीरियंस से सीख ले और इस एक्सपीरियंस को अपने आम जिंदगी में ना अपनाएं, इसमें जान जोखिम शामिल है। हमारे कंधों को किताबों के बोझ ने सताया, टेंशन में रहते समय खुशी से रहना मेरे दोस्तों ने बताया। वो 99% लाने की भूख में कभी एक दूसरे से लड़वाया, लड़ते लड़ते आज हम इस सीमा पर आ गए जब हमें स्कूल को अलविदा कहना है। वो पहला दिन स्कूल का आज ही याद आ रहा है, काश समय यहीं रुक जाता। जब पहले दिन इस स्कूल में आई थी तो ये स्कूल किसी हॉस्पिटल के क्वारंटाइन सेंटर जैसा था, जहाँ 28 पैरों एक दूसरे से अनजान ऑनलाइन एग्जाम के बाद ऑफलाइन एग्जाम से जूझ रहे थे। हर एग्जाम में कोरोना वापस आए उसकी मन्नतें मांग रहे थे। दिन दिन यूँ ही बीत रहे थे, हमें हमारी जिम्मेदारियाँ समझ आ रही थी। कुछ लम्हों पहले ही तो हमने फेयरवेल दिया था, इतनी भी क्या जल्दी थी कि हमारी बारी आ गई। ये 2 साल मेरे प्यारे दोस्तों के साथ कब गुजर गए ऐसा मैं नहीं कहने वाली यार, इतने सारे एग्जाम से गुजरे कि ये 2 साल कब खत्म होने हैं पता ही नहीं चला। कभी कभी लगता था कि स्कूल कितना बोरिंग है, रोज उठो, स्कूल जाओ, मार खाओ और घर आ जाओ। लेकिन इस स्कूल में जो मस्तियाँ हमने की है वो आज याद आते हैं। स्कूल में सबसे बेस्ट प्लेस 2 ही है, एक वॉशरूम और एक कैंटीन। वो दिन बाद वॉशरूम के चक्कर काटना या रिसेस में टीचर से रिश्वत कैंटीन के लिए मांगना, चालू क्लास में टिफिन मारना, यार यहाँ तक कि टीचर्स का भी टिफिन नहीं छोड़ा हमने तो। टीचर्स हमको बोलते थे बेटा अभी चाय तो पी लेने दे।
कंप्यूटर लैब में 3 घंटे बैठकर एक प्रैक्टिकल ना कर पाना, वो एक ही प्रोग्राम को कंप्यूटर पर 10 लोगों का करना। हमारा कनेक्शन प्रोग्राम से तो सही था, लेकिन स्कूल के सर्किट में कुछ प्रॉब्लम था कि प्रोग्राम ही कंप्लीट नहीं हो पाता था। वो बॉयज़ का मिल के एक दूसरे को फंसाना। मज़ा तो तब आता था जब टीचर अपना फेवरेट सवाल पूछता था, होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? इस सवाल के साथ अलग अलग पिच, टोन और एक्टिव पैसिव वॉइस भी खेलते थे। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? होमवर्क तुमसे क्यों नहीं हुआ? अच्छा, खुद ही पूछते थे, खुद ही आंसर भी दे देते थे। खाना खाना तो नहीं बोलते। हमारे स्कूल में थोड़ा अलग है, ये प्रिंसिपल मैम का फेवरेट डायलॉग है, पीटी जाना तो नहीं भूलते। कितना मज़ा आता था ना प्रभा मैम के क्लास में, और नैना मैम के गानों पर तो सब डांसर्स बन जाते थे। नैना मैम, आज भी हम आपका गाना सुनने ही आए। खैर, हमारे प्यारे टीचर्स तो इतने अच्छे हैं कि आँख बंद करके हम पे विश्वास करते हो ना? तो मेरे प्यारे टीचर्स के लिए ये हमसे इतना प्यार करते हैं कि गलतियां करने पर पनिशमेंट में लाइट, फैन, विंडो बंद करके, डोर बंद करके चले जाते थे। तो प्यारे टीचर्स के लिए अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। कि वेडनेसडे और थर्सडे को खुशी का समा आता था जब हेमंत सर आके कहते थे कि आज पीटी नहीं है जाना। बात बात पर एलसिया निकलवाना और हमारा उनके पीरियड में तेरी झलक अशोक की शिवल्ली का गाना गुनगुनाना। कुछ मेरे खूबसूरत दोस्तों के लिए भी कि कम ज्ञानी नहीं है ये, कि कम ज्ञानी नहीं है ये, पूरे साल मस्ती करते हैं जनाब, बैक बेंचर है ये, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के टॉप करते हैं, जहाँ जाए वहाँ अपने अंदाज से हंगामे मचाते हैं। इनकी एंट्री से पता चल जाता है कि 10th वाले सारे आज स्कूल आए हैं। यूं ही नहीं, ये 10th के लेजेंड्स कहलाते हैं। यही लेजेंड्स का रोज सरिता मैम को सताना, सॉरी मैम, और फिर सरिता मैम के गुस्से से हमारी प्यारी अंतिमा मैम और निकिता मैम का हमें उनसे बचा। कुछ बदमाशों का सरिता मैम का दिया होमवर्क न कर पाना पर उनको दूसरी बातों में उलझाना। समझते सब थे वो हमारी चाल, पर कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि मैथ्स में है वो कमाल। अमृता मैम, विजयलक्ष्मी मैम और प्रिंसिपल मैम के पीरियड में पढ़ाई के साथ साथ मस्ती और धमाल मचाना, और मजाल है कि नैना मैम के गाने पर जेठालाल की तरह ठुमका ना लगाना। हम बदमाशों को संभालना और यूं ही विनम्र से पढ़ाना। कोटि कोटि शुक्रिया है आपको, यह हमारा फर्ज है जताना। थैंक यू। चलो जा रहे हो तो सुनाए कुछ मन की, चलो बात करें तुम्हें याद रखने की। ना रोएंगे यहाँ कोई पर हंस भी नहीं पाएंगे, जो काटे पर सभी के संग उन्हें कैसे बुलाएंगे। तुम सभी की वो छोटी छोटी बातें, दिव्या और श्रेया की डिसेंसी, वो कल्पेश, अभी और प्रथम का हमेशा डिसिप्लिन में रहना, ऋषि एंड युग की एवरग्रीन स्माइल और सुजल का बिना मतलब क्लास में चिल्लाना, काव्या का अनएंडिंग कंफ्यूजन, गुनगुन का किसी के साथ भी एडजस्ट ना हो पाना, जहाँ हर कोई क्लास में आवाज करता था वहाँ आर्यन, भगीरथ, तान्या, खुशी और खुशबू तिवारी का हमेशा चुप रहना, तीर का बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देना, मौर्य का ऑलवेज क्लास के बाहर जाने की कोशिश करना, और वहीं इन सब के ऊपर नीलय के कमेंट्स।
गायत्री का हमेशा सेलिब्रेशन में बिजी रहना, तन्मय तीर्थ का चुप रह के बहुत कुछ कर जाना, नंदनी का गुस्सा, रौनक की हंसी, विकास का स्कूल में अक्सर एब्सेंट रहना, प्रीत का नॉन स्टॉप बोलना, जैनम और यमन की मस्ती, हेली की स्मार्टनेस और शुभम के वो अनगिनत सवाल, ये सब कितना याद आएगा जो वो क्लासरूम सवाल उठाएगा, कहाँ गए वो लूट कर टिफिन खाने वाले और गाड़ी गाड़ी का खेल खेलने वाले। और होमवर्क देने वाले प्यारे टीचर्स and all my fellow junior friends, I would like to make a moment to thank you all for giving the opportunity to present my experience and thoughts. तो स्पीच देने से पहले एक डिस्क्लेमर तो बनता है क्योंकि क्लास बहुत खतरनाक है। इस कार्यक्रम में उपस्थित 9th क्लास की प्यारी बहनें और उनके प्यारे भाइयों, टीचर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, इस स्पीच में बोले जाने वाले वाक्य का मेरे मित्रगण, टीचर्स और जूनियर्स की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया हमारी एक्सपीरियंस से सीख ले और इस एक्सपीरियंस को अपने आम जिंदगी में ना अपनाएं। इसमें जान जोखिम शामिल है। हमारे कंधों को किताबों के बोझ ने सताया, टेंशन में रहते समय खुशी से रहना मेरे दोस्तों ने बताया। वो 99% लाने की भूख में कभी एक दूसरे से लड़वाया। लड़ते लड़ते आज हम इस सीमा पर आ गए जब हमें स्कूल को अलविदा कहना है। वो पहला दिन स्कूल का आज ही याद आ रहा है, काश समय यहीं रुक जाता। जब पहले दिन इस स्कूल में आई थी तो ये स्कूल किसी हॉस्पिटल के क्वारंटाइन सेंटर जैसा था, जहां 28 पैरों पे एक दूसरे से अनजान ऑनलाइन एग्जाम के बाद ऑफलाइन एग्जाम से जूझ रहे थे। हर एग्जाम में कोरोना वापस आए उसकी मन्नतें मान रहे थे। दिन दिन यूं ही बीत रहे थे। हमें हमारी जिम्मेदारियां समझ आ रही थी। कुछ लम्हों पहले ही तो हमने फेयरवेल दिया था, इतनी भी क्या जल्दी थी कि हमारी बारी आ गई। ये 2 साल मेरे प्यारे दोस्तों के साथ कब गुजर गए ऐसा मैं नहीं कहने वाली यार। इतने सारे एग्जाम से गुजरे कि ये 2 साल कब खत्म होने आए पता ही नहीं चला। कभी कभी लगता था कि स्कूल कितना बोरिंग है, रोज उठो, स्कूल जाओ, मार खाओ और घर आ जाओ। लेकिन इस स्कूल में जो मस्तियाँ हमने की हैं वो आज याद आते हैं। स्कूल में सबसे बेस्ट प्लेस 2 ही है, एक वॉशरूम और एक कैंटीन। वो दिन बाद वॉशरूम के चक्कर काटना या रिसेस में टीचर से रिश्वत कैंटीन के लिए मांगना, चालू क्लास में टिफिन मारना। यार यहाँ तक कि टीचर्स का भी टिफिन नहीं छोड़ा हमने तो। टीचर्स हमको बोलते थे बेटा अभी चाय तो पी लेने दे। कंप्यूटर लैब में 3 घंटे बैठकर एक प्रैक्टिकल ना कर पाना, वो एक ही प्रोग्राम को कंप्यूटर पर 10 लोगों का करना। हमारा कनेक्शन प्रोग्राम से तो सही था लेकिन स्कूल के सर्किट में कुछ प्रॉब्लम था कि प्रोग्राम ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। वो बॉयज़ का मिल के एक दूसरे को फंसाना। मज़ा तो तब आता था जब टीचर अपना फेवरेट सवाल पूछता था, होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने। इस सवाल के साथ अलग अलग पिच, टोन और एक्टिव पैसिव वॉइस भी खेलते थे। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, होमवर्क तुमसे क्यों नहीं हुआ। अच्छा खुद ही पूछता था, खुद ही आंसर भी दे देते थे। खाना खाना तो नहीं बोलते। हमारे स्कूल में थोड़ा अलग है, ये प्रिंसिपल मैम का फेवरेट डायलॉग है, पीटी जाना तो नहीं भूलते। कितना मज़ा आता था ना प्रभा मैम के क्लास में, और नैना मैम के गानों पर तो सब डांसर्स बन जाते थे। नैना मैम आज भी हम आपका गाना सुनने ही आए। खैर हमारे प्यारे टीचर्स तो इतने अच्छे हैं कि आँख बंद करके हम पे विश्वास करते हो ना। तो मेरे प्यारे टीचर्स के लिए ये हमसे इतना प्यार करते हैं कि गलतियां करने पर पनिशमेंट में लाइट, फैन, विंडो बंद करके, डोर बंद करके चले जाते थे। तो प्यारे टीचर्स के लिए अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। कि वेडनेसडे और थर्सडे को खुशी का समा आता था जब हेमंत सर आके कहते थे कि आज पीटी नहीं है जाना। बात बात पर एलसिया निकलवाना और हमारा उनके पीरियड में तेरी झलक
गुनगुनाना। कुछ मेरे खूबसूरत दोस्तों के लिए भी कि कम ज्ञानी नहीं है ये, कि कम ज्ञानी नहीं है ये, पूरे साल मस्ती करते हैं जनाब, बैक बेंचर है ये, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के टॉप करते हैं, जहाँ जाए वहाँ अपने अंदाज से हंगामे मचाते हैं। इनकी एंट्री से पता चल जाता है कि 10th वाले सारे आज स्कूल आए हैं। यूं ही नहीं, ये 10th के लेजेंड्स कहलाते हैं। यही लेजेंड्स का रोज सरिता मैम को सताना, सॉरी मैम, और फिर सरिता मैम के गुस्से से हमारी प्यारी अंतिमा मैम और निकिता मैम का हमें उनसे बचा। कुछ बदमाशों का सरिता मैम का दिया होमवर्क न कर पाना, पर उनको दूसरी बातों में उलझाना। समझते सब थे वो हमारी चाल, पर कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि मैथ्स में है वो कमाल। अमृता मैम, विजयलक्ष्मी मैम और प्रिंसिपल मैम के पीरियड में पढ़ाई के साथ साथ मस्ती और धमाल मचाना, और मजाल है कि नैना मैम के गाने पर जेठालाल की तरह ठुमका ना लगाना। हम बदमाशों को संभालना और यूं ही विनम्र से पढ़ाना। कोटि कोटि शुक्रिया है आपको, यह हमारा फर्ज है जताना। थैंक यू। Today I think 100% present from the Gujarati medium and English medium of class 10th. And madam आज सब present है, एक एब्सेंट है ओनली, बाकी लगते हैं कि आज सब प्रेजेंट हैं और all are looking good in a different attire. सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, अलग ड्रेस में आए हो और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपका स्कूल का लास्ट डे है। आज आप यहाँ से पेपर लेके जाने वाले हो, लेकिन होप के क्लास 11th में वापस हम मिलेंगे यहाँ पर। जो बच्चे को कॉमर्स और साइंस रखना होगा वो बच्चा यहाँ पे आएगा और दूसरे स्कूल में भी जा सकता है, लेकिन आशा करते हैं कि वापस हम मिले यहाँ पर। और जो क्लास 10th की बैच है, अभी तक मेरे टीचर से भी सुना है कि बहुत अच्छा, इंग्लिश मीडियम के बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुजराती मीडियम भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो जो भी आशा रखी है टीचर्स ने आपके पास, वो आशा को निराशा में मत बदलना। जो 100% रिजल्ट आएगा, आपके सारे पेरेंट्स फ्लैग होस्ट करने वाले हैं, ऐसा मैडम मुझे बता रहे थे कि सबके पास कंपटीशन है। तो वो कंपटीशन जो आपने सोचा है कि हमारे पेरेंट ही आने चाहिए फ्लैग होस्ट के लिए, तो वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट डे। और जो भी आपने यहाँ से सीखा है, अपने टीचर्स के पास से सीखा है, पढ़ाई के लिए तो सीखा ही होगा अच्छे नंबर लाने के लिए, और इसके साथ दूसरी बहुत कुछ चीज़ें सीखी होगी और अच्छा भी नहीं लगा होगा। जैसे अभी दिव्या ने बताया है, सब टीचर्स के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कहा है, बहुत अच्छा रोल रहा होगा। नैना मैडम के लिए तो बहुत कुछ है, नैना मैडम शायद सबके फेवरेट लगते हैं कि उनके क्लास में सबको बहुत मज़ा आती है। अभी ये बहुत अच्छी, अब आज आपका दिन भी आज का दिन भी चला जाएगा। 14 से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत कम डेज बाकी है। अभी एक ही हमारे ध्यान में होना चाहिए, हमारा सिलेबस मोस्टली ऑलवेज आपका कंप्लीट हुआ होगा, टीचर की साइड से नहीं, आपकी साइड से पूरा हो गया होगा। आपने दूसरी बार भी रिवाइज किया होगा, हाईलाइट भी किया होगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कैसे रीड करना है। दर्शन सर ने बहुत अच्छी तरह बताया है कि एग्ज़ाम के जाने के पहले क्या क्या करना है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी आपको एकदम पेशेंस से क्वेश्चन पेपर रीड करना है और शांति से आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आप घबरा जाके आंसर भूल जाओगे। 10th क्लास, और जो भी उनको यूनिफॉर्म तो नहीं पहनना ना मैडम, यूनिफॉर्म नहीं पहनना होता है ना, यानी सिविल, तो सिविल ड्रेस जो भी पहनोगे आप तो वो कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ से आपको कंफर्टेबल नहीं फील करो और पेपर लिखने में मज़ा नहीं आए। तो जो भी ड्रेस पहनो बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी सर ने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पेन है तो यूज पेन लेके जानी है, कपड़े में बताया कैसे पहनना है, खाने में भी ध्यान रखो, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके साथ आपका एग्ज़ाम भी फिनिश हो जाएगा। एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद भी अगर सपोज कुछ होता है तो नर्वस भी नहीं होना। ये लाइफ की लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, लाइफ एवरी
स्टेज पर एग्जाम होगी। अभी ये तो टाइम टेबल के हिसाब से एग्जाम हम देने जा रहे हैं, सिलेबस पता है, कैसे आने वाला है वो पता है। लाइफ में कभी कभी टाइम टेबल नहीं होता, ऐसे एग्जाम्स भी हमको देनी पड़ेगी, तो कभी भी नर्वस नहीं होना। कोई भी टीचर, आपको पेरेंट्स बहुत फोर्स भी करेंगे, बहुत प्रेशराइज होके कुछ भी ऐसे जैसे आप नर्वस हो जाते हो, ऐसे नर्वस होके कुछ ऐसा स्टेप भी नहीं भरना। तो आपको इतना ध्यान रखना है, हमारे लाइफ में 3 क्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 क्यू, कौन से 3 क्यू है? एक पहला है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन में सबके अंदर, सब बच्चे अच्छे पढ़ने में अच्छे हैं, होशियार हैं, तो आपका IQ लेवल, जिसको IQ बोलते हैं, IQ लेवल अच्छा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप मुझे याद रहता नहीं है, मुझे मैडम बहुत बार पढ़ती हूँ फिर भी याद रहता नहीं है, वो चीज़ गलत है। अपने फ्रेंड्स का नाम याद रहता है आपको, टीचर्स ने कुछ कहा है वो याद रहता है, पेरेंट्स ने कुछ कहा है याद रहता है। तो पढ़ाई में भी सेम ऐसा ही है, आपका 2 माइंड काम करता है। पीछे लास्ट 2 माइंड काम करता है, जो आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन 2 माइंड नहीं करने देते। 99 एक माइंड काम करता है, एक नर्वस एक माइंड है वो 1% काम करता है, फिर भी वो अपना काम करने नहीं देता। तो आपको कभी भी मूवी देखते हो तो पूरी स्टोरी याद रहती है कि नहीं? क्यों याद रहती है? क्योंकि आपका जो 1% माइंड है उसको याद करवाता है। तो कभी भी कुछ आलस होती है तो उसको निकाल के, अभी थोड़ा टाइम बाकी है तो अपने IQ है उसको जगा के अच्छी तरह मेहनत करो और अच्छा पढ़ाई करो। एक IQ सबके अंदर है ही, जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं सबके पास IQ है। IQ के बिना यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता आपको, तो IQ तो है ही। सेकेंड क्यू है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल मीन्स SQ। आपके अंदर इतना ही श्रद्धा होना चाहिए अपने टीचर्स पर, अपने गुरु पर, अपने पेरेंट्स पर, अपने आप पर। अगर आपका एक क्वेश्चन होगा तो आप डेफिनेटली यू शुड अचीव, जो आपने डिसाइड किया होगा वो गोल अचीव करोगे। और थर्ड क्यू है इमोशन क्वेश्चन। इमोशन क्वेश्चन मीन्स कभी भी हम लाइफ में कभी आगे जाएंगे, अच्छे नंबर्स लाएंगे, कभी कभी अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स मिलते हैं, कभी कोई और मिलता है, तब आपके पास ऐसे इमोशन होने चाहिए। अगर कोई डॉक्टर भी बन जाता है यहाँ से, डॉक्टर बनने के बाद आपके अंदर इमोशन नहीं है तो क्या हो सकता है? आज समझ सकते हो ना। सर ने बताया कि हमको इंडिया को अच्छा सिटीजन देना है। चाणक्य स्कूल का नाम है, हम चाणक्यन हैं। आपके चाणक्य जैसे टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आपको चंद्रगुप्त जैसे बन के अच्छा रिजल्ट देना है और अच्छा जो भी मोरल्स वैल्यू सिखाए हैं वो वैल्यू को लाइफ में फॉलो करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। आज सबको दूसरा बहुत कुछ देखना है, सुनना है, टाइम बहुत कम है, हमने हाफ एन आवर लेटली प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। और टीचर्स ने बहुत मेहनत की है आपके लिए। टीचर्स को प्राइज़ दिलाना आपके हाथ में है। आपके टीचर्स को भी 100% रिजल्ट देते हो आप तो उनको प्राइज़ मिलता है, तो वो प्राइज़ देना आपके हाथ में है। आप अपने टीचर्स को अपने सब्जेक्ट का रिजल्ट दिखाइए और टीचर्स को इनाम दिलाइए स्कूल में से। ऑल द बेस्ट। और अच्छा बोर्ड का पेपर अच्छी तरह लिखो, जो इंस्ट्रक्शन सर ने दिए हैं वो फॉलो करो और अच्छी तरह दीजिए। थैंक यू। what you have to do and how the student have to perform. मैं अनिल को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है ये सब करना पड़ता है क्योंकि ये आपके ही अच्छे के लिए है। आज वो होता तो शायद और कुछ मज़ा आता, लेकिन कभी कभी आपको भी समझना है कि अगर हम ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं रहे, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ दोनों चीज़ें साथ में करनी है। और स्पेशली नेचर आपको ये सारी चीज़ें ऐसे टाइम पे देता है जहाँ पे सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके बॉडी में भी हो रहे हैं और आपके करियर में भी हो रहे हैं। तो जो जैसे आप बैलेंस करेगा वही सरवाइव करेगा, है ना। दोनों चीज़ों को जो बैलेंस करेगा, आपकी टीनेजर और आपका करियर, इसमें दोनों वो आपको किसको कितना वेटेज देना है वो आपको डिसाइड करना है। मुझे बहुत बुरा लगा कि आज लास्ट डे मैंने कुछ बच्चों को पनिशमेंट दिया और जैसे जज ने बताया कि उसने मार भी खाई,
तो बेटा हमको ये सब करने में नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हम आपसे बड़े हैं, तो अगर आप नहीं परफॉर्म प्रॉपर करोगे तो उसके इफेक्ट्स कितने लॉन्ग होंगे, इसलिए ये सब करना पड़ता है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि आज इतने सारे बच्चे जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस साल के बैच में इतने सारे टॉपर हैं कि मैं बहुत ईगर हूँ देखने के लिए कि किसके पेरेंट्स आएंगे फ्लैग होस्टिंग करने के लिए। तो आपको अभी ये 1 मंथ जो है पूरा याद रखना है कि मुझे मेरे पेरेंट्स को वहाँ देखना है 15 अगस्त को स्टेज पे। बच्चों, ये रिस्पेक्ट सिर्फ आप ही दे सकते हो उनको, और उनकी लाइफ में भी आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल थिंग होगी। बहुत आपने जब नर्सरी में हम आते हैं, शायद प्री प्राइमरी के टीचर है उनको पता है आप कैसे होते हो, रोते रोते आते हैं, और आज इतना एंजॉय कर रहे हो। इतने सारे प्रोग्राम कंडक्ट करने की एबिलिटी आपके अंदर कहाँ से आई? यही एक प्लेस है जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाती है। प्री प्राइमरी में टीचर ने पहले आपको चुप करा के पेंसिल पकड़ना सिखाया, और आपको 10th में उन्होंने इतना एबल बनाया कि आप 30 सेकंड में 10 फॉर्मूले बता पाओ। तो ये सारा जो क्रेडिट है ये स्कूल का और टीचर का है। और आई थिंक आपको बहुत, मैं जब 12th में पढ़ाती थी, बहुत बच्चे बाद में मैसेज करते थे कि मैडम आप पनिशमेंट करते थे, बुलाते थे, डांटते थे, लेकिन अभी बहुत मिस कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको वहाँ कोई नहीं पूछेगा आपने कितने एग्ज़ाम्स दिए, कितने नोट्स बनाए, या किसने नोटबुक चेक कराई, वो कोई नहीं पूछेगा। तब आपको फील होगा कि रियली दे वर केयरिंग। ये सब आपका प्यार है, आपकी केयर है, और हमें पता है कि यू आर नॉट दैट मच मैच्योर टू टेक डिसीजन। आप कभी भी किसी के भी इसमें आ सकते हो, बातों में, फ्रेंड्स के, या फिर किसी भी गैजेट से इंटरेक्ट हो सकते हो, और आप आपका परफॉर्मेंस लूज कर सकते हो। इसलिए हमको ये सब स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ती है, वरना हम भी चाहते हैं कि सबका प्रेजेंट, सबका अटेंडेंस हो। जैनब ने कल एक दिन में 5 पेपर लिखे क्योंकि उसको फेयरवेल में आना था। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है, क्योंकि आप जब भी पेपर लिखोगे तो आपको पता चलेगा कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कैसे पेपर का प्रेजेंटेशन रखना है। तो ये स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको भले ही कितने भी पनिशमेंट दिए हो, लेकिन लाइफ में मैं आपको श्योर बताती हूँ कि इतनी केयर आपकी कोई नहीं करेगा जो आपके टीचर करते हैं। जब हमने 26 जनवरी को जो क्राइटेरिया रखा था, सारे क्लास टीचर अपने आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और लड़ रहे थे कि मेरा बच्चा आपके बच्चे से अच्छा है। तो इतनी अटैचमेंट आपको और आपके टीचर को आपके लिए है, दैट मीन्स दे आर रियली योर सेकंड पेरेंट्स। तो आपको भी उतनी ही वैल्यू उनकी रखनी है। फ्यूचर में आप भी जब टीचर बनोगे, जब पेरेंट्स बनोगे, तब ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करोगे। इसलिए मैं आपको बहुत मीन्स प्रॉब्लम